رہنمائی کریں. 22 باب 5 میں ایک ہی آیت پڑھنی ہے. جی ذرا خاموشی کے ساتھ پلیز بڑے اس کو سنیے گا، توجہ کیجیے گا، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں بدل سکتا ہے. اسسنا 22 باب اور اس کی 5 آیت سے پڑھیں گے. عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو اسے ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے. آمین آمین آمین. کتنی اچھی بات خدا کے کلام میں سے ہمیں مل رہی ہے کہ مرد جو ہیں وہ آج دیکھ رہے ہیں عورتیں مردوں کا لباس پہن رہی ہیں اور مرد جو ہیں عورتوں کے کپڑے، عورتوں والی ڈریسنگ، اور ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ماں باپ کا. ہمارے بچے جب تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بالیاں پہننا شروع ہو جاتے ہیں. خاص طور ہمارے مسیحیوں کے بچے بالیاں پہنتے ہیں، الٹے فیشن، اور ماں باپ ان کو دیکھ کر کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، افسوس نہیں کرتے، ان کو منع نہیں کرتے کہ یہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے. یہ مکروہ کام ہے جو آج ہمارے بچے کر رہے ہیں، اور ان سب کے پیچھے ہم سب کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو منع نہیں کرتے. بہت سے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ لڑکوں کو لڑکیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، میک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بعد میں افسوس کرتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو افسوس، شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے جب ہمارا بچہ ایسے الٹے کام کرتا ہے، مکروہ کام کرتا ہے، الٹے عورتوں والے کپڑے پہنتا ہے، بالیاں پہنتا ہے، کوکے پہنتا ہے. تب ہم افسوس کرتے ہیں، تب تک سر سے پانی گزر جاتا ہے. ہم ان کو منع نہیں کر سکتے، ہم بچپن میں ہی ان کو پکڑ سکتے ہیں جب وہ ایسا کام کریں یا ہم باز آئیں ایسے کاموں سے. اگرچہ خدا نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں تو ان کو بیٹیوں کی طرح پرورش کریں، بیٹیوں والے کپڑے بنائیں، عورتوں والے ڈریسز بنائیں ان کو، ورنہ آپ پچھتائیں گے. جب وہ آپ کے ہاتھوں میں سے نکل جائیں گے تو پچھتاوا بس. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹیوں کو لڑکا بنانا شروع کر دیتے ہیں، لڑکوں والے کپڑے پہنانا شروع کرتے ہیں. یہ بات شروع سے ہی آپ پکڑ سکتے ہیں. یہ کام، یہ بات جو خدا کے کلام میں ہم نے دیکھی ہے، شروع سے ہی ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں. اپنے بچوں کو اگر وہ بیٹا ہے تو اس کو بیٹوں والے کپڑے، مردوں والے کپڑے پہنائیں. تو ضرور ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ بڑے ہوں گے تو وہ آدمیوں والے کپڑے پہنیں گے، اپنا ڈریسنگ جو ہے وہ آدمیوں والا کریں گے، جو بھی ڈریسنگ کریں گے آدمیوں والی کریں گے. اگر ہم منع نہیں کریں گے ان کاموں سے تو پچھتاوا ہوگا. بہت سے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، ہمارے محلے میں بھی ہیں، نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لڑکیوں کو لڑکے بنایا ہوا ہے، تو وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی واپسی نہیں ہے. سوچیں ذرا اس بات کو، ان کی زندگی کیا ہوگی آگے جا کر، کیسے زندگی بسر کریں گے. دیکھیں، جس کو خدا نے عورت بنایا ہے تو آپ اس کو مرد بنا رہے ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ یہ سب مکروہ کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے مخالف چل رہے ہیں. کیا ہمیں خدا کے مخالف چلنا چاہیے؟ خدا کا کلام تو ہمیں نہیں سکھاتا یہ باتیں. خدا کا کلام تو ہمیں درست کرنے کی باتیں سکھاتا ہے تاکہ ہم درست ہو جائیں، درست ہو سکیں. تو ہم درست ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں اکثر عورتوں کو کہتا ہوں، لیکن
मर्दों को भी बहुत जरूरत है। जो मर्द ढीले पड़े हुए हैं, ठीक है जो कर दे कर दो, ए दिमाग जाने दे, क्योंकि तू क्यों नहीं जानता? तूने पैदा किया है, ये तेरी मर्जी से पैदा हुआ है बच्चा, तो तेरी मर्जी क्या खुदा के खिलाफ है? खुदा के कलाम को नहीं जानता? तो खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि मर्द औरतों वाले पोशाक ना पहने और औरतें मर्दों वाला लिबास। हमें आज जरूरत है कि हम अपने लिबास की तरफ देखें। इसलिए मैं कह रहा था कि बच्चों का होना जरूरी था, ताकि बच्चे भी इस बात को जान सकते, सीखते कि हमने औरतों वाले कपड़े नहीं पहनने, हमने कानों में बालियां नहीं पहननी, हमने ऐसे उल्ट पुल्ट फैशन नहीं करने। आज हम देखते हैं चर्चिस में भी अगर लड़के जाते हैं तो अजीब किस्म का हुलिया बनाया होता है। हमारे चर्चिस में तो नहीं ऐसा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा फैशन नहीं करते। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। हमारे चर्चिस में जितने भी बच्चे आते हैं वो इंसान हैं, इंसानों वाले कपड़े पहनते हैं, इंसानों वाली ड्रेसिंग्स करते हैं और इंसानों वाले बाल बनाते हैं। अगर हम देखें बहुत से चर्चिस में अजीब किस्म के गेटअप, रूपिये बने होते हैं लड़के, बेशक्ल रूपे होते हैं। बाल देख लें उनके, पता नहीं कैसे कैसे बाल बनाए होते हैं, ऐसे खड़े किए होते हैं अजीब तरीके के, क्योंकि वो खुदा के कलाम को नहीं जानते। जो ऐसे फैशन करते हैं वो खुदा के कलाम से दूर हैं। खुदा का कलाम हमें तरबियत देता है, नसीहत देता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, कैसे बसर करना है। और मेरा ईमान है कि यहाँ तक भी ये मैसेज मेरा जाएगा चैनल के ज़रिए से, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि लोग समझेंगे, सीखेंगे इस बात को कि हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, हमने कैसे अपने बच्चों को तरबियत देनी है। हम बचपन में ही उनको जैसा बनाएंगे वो वैसा ही बनेंगे। जिस डाई में हम उसको ढालेंगे उसी डाई के तरीका से वो तैयार होंगे। कोई भी हम सैंपल तैयार करते हैं, उसकी डाई तैयार की जाती है। जब वो सैंपल उस डाई से बाहर निकालते हैं तो वो जैसा नक्शा हम उसको देते हैं, जैसा आकार उसको हम देते हैं, वो उसी तरह ही तैयार हो जाता है। तो ज़रूर है कि ऐसे ही हमने अपने बच्चों को तरबियत जैसी करनी है, जिस डाई में हमने उनको ढालना है वो उसी तरह ही निकलेंगे, बनेंगे, तैयार होंगे। तो ये हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है। खुदावंद आपको बरकत दे और ये बातें आप ज़रूर अपने बच्चों तक पहुंचाएं। जो बच्चे आज इधर नहीं आए उन तक आपने ये बातों को पहुंचाना है। और अफसोस, एक और अफसोस कि बहुत से लोग बाहर के जो है हमारे चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन हमारे अपने लोग पता नहीं देखते कि हैं या नहीं देखते। अफसोस की बात है। शबीर साहब ने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि साढ़े लोग नहीं लगता देख। अफसोस की बात है। अगर आप देखते हो तो पता चल जाता है, जब आप लाइक करेंगे तो पता चल जाता है कि किसने लाइक किया है। कौन कौन देखता है वैसे? चलो तेरे तो पता नहीं, तेरी माफी। कौन कौन देखता है वैसे चैनल को? हमारे अपने बच्चे नहीं देखते, हम दूसरों को क्या कहेंगे? आप जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लाइक बढ़े तो हमें कुछ शायद कुछ आना शुरू हो जाए, अर्निंग शुरू हो जाए। ऐसी बात नहीं, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हमारी बातें, हमारा यहाँ से जो कलाम शेयर होता है वो बहुत से लोगों तक पहुँच सके। और प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रूर देखा करें। ग्रुप में भी हम उसको डालते हैं, यूट्यूब पर तो चलता है, या ग्रुप से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते हमें पता नहीं है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। पास्टर शबीर साहब का भी आप सबको पता है, वो भी कोई भी आप जो है ना हमारा चैनल देखते नहीं। मैं लाइव बात कर रहा हूँ ताकि लोगों को भी पता चले हमारा चर्च कैसा है। सच्चाई की बात है। मैं देखूंगा इस बार कि कितने लोग देखते हैं। अब देखा करें, आप देखेंगे तो अपने बच्चों को भी दिखाएंगे कि ये देखें। आप नहीं पहुंचा सकते पूरा मैसेज, लेकिन चैनल के जरिए से आप अपने बच्चों को कह सकते हैं ये इसको सुनो, एलसीडी पे लगाओ,
اور دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھیں, کوئی مووی دیکھیں, آپ اپنے چینل کو ہی نہیں دیکھتے, اپنے چینل سے آپ لوگ دور ہیں. افسوس کے ساتھ آج میں نے بات کی ہے, میں نے کبھی یہ بات نہیں کی, لیکن یہ بات اچھی بات ہے, ہم سیکھیں اس کو اور سنا کریں. دوبارہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا شاید ہم بھول گئے کیا سیکھا ہے ہم نے. میں کئی بار پوچھتا ہوں پچھلے سنڈے کیا سنا ہے, پتہ ہی نہیں, کسی کو بھی نہیں یاد ہوتا. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں. اور اگر ہم وہ کیا کہتے ہیں اس کو اسٹیٹس لگاتے ہیں, اس کو بھی لائک نہیں کرتے, لوگ دیکھتے ہیں ایسے آگے کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا افسوس کی بات ہے کہ ایک انگوٹھا لگانا ہوتا ہے, توجہ نہیں ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں خدا کے کلام کی طرف, خدا کے کلام کی طرف, اپنے چینل کی طرف توجہ نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھا کریں اس کو بھی, وقت نکالا کریں. جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے آپ مووی لگا لیتے ہیں, بجائے مووی کے آپ اپنے چینل کو لگائیں تاکہ آپ کے بچوں کو پتہ چلے کہ ہم نے آج کیا سیکھا ہے, یاد ہو ان کو. اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس بار ضرور اپنے گھروں میں اس چینل کو لگائیں گے, اپنی ایل سی ڈیوں پر دیکھا کریں, اور اچھی آواز بھی آئے گی آپ کو اور اچھا بھی لگے گا. خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہمارے یہاں سے جتنے بھی میسیج ڈلیور ہوتے ہیں بڑے اچھے میسیج ڈلیور ہو رہے ہیں. خداوند کی شکر گزاری ہے. آمین, ہاللیلویا. اور میرے عزیزو, ہم خدا کے کلام کی طرف آئیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. پہلے حوالے میں کیا سیکھا ہے؟ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک. آمین. ہم سب تو بڑے ہیں لیکن یہ باتیں اپنے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں, بچوں تک پہنچنی بہت ضروری ہیں یہ باتیں ساری, تاکہ وہ بڑے ہو کر جو مرد بچے پیدا ہوئے ہیں وہ مردوں والی ڈریسنگ کریں, مردوں والے کپڑے, مردوں والے بال. اور کتنا اچھا لگے گا جب ہم خدا کے کلام کو پورا کریں. یہ خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے. اور عورتوں والے لباس پہنیں, عورتوں والے کپڑے پہنیں گی تو بڑا اچھا لگے گا, خدا خوش ہوگا. کیونکہ یہ کام خدا کے نزدیک کیا ہے جی؟ مکروہ ہیں. کیا ہم مکروہ کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم مسیحی ہیں اور بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مسیحی ہیں, اور ہمیں فخر کرنا چاہیے. اور فخر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو کلام کی تربیت اور نصیحت دیکھ کر, جیسے جیسے ہمارے بچے بڑھیں وہ کلام میں بڑھیں, کلام کی باتیں سیکھتے ہوئے بڑھیں, تاکہ وہ مضبوط ہوں. جب وہ بڑے ہوں اور وہ پھسلے نہ, وہ اپنے مذہب میں مسیحیت میں قائم ہوں. جب وہ مسیحیت میں قائم ہوں گے, جب ان کو اپنے مذہب کا پتہ ہوگا, تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم کمزور نہیں ہوں گے. آسانی کے ساتھ لوگ ہمیں پکڑ کر زبردستی ہمارے مذہب چینج نہیں کر سکتے. ہمارا مذہب عام مذہب نہیں ہے, ہم اہل کتاب ہیں. اور اہل کتاب کہاں تک ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں دوسرے مذاہب میں جا سکتی ہیں. یہاں تک ہم اہل کتاب ہیں, اور ہمیں اچھی پوسٹیں نہیں مل سکتی. جب اچھی پوسٹوں کی بات آتی ہے, بڑی پوسٹوں کی, بڑی سیٹوں کی بات آتی ہے, تو تب ہم اہل کتاب نہیں ہوتے, یہ ہمیں نہیں مل سکتی. لیکن ہماری بچیاں ان کے پاس, ان کے گھروں میں جائیں, تب ہم اہل کتاب ہیں. کتنی افسوس کی بات. کیا ہمارے بیٹے اہل کتاب نہیں ہیں؟ ان کو ضرورت نہیں ہے بیٹیوں کی, ان کو اپنی بیٹیاں کیوں نہیں دیتے یہ لوگ؟ ہمارے بیٹے بھی اہل کتاب ہیں, صرف بیٹیاں اہل کتاب نہیں ہیں. مسیحوں میں ہم اہل کتاب ہیں اور ہمیں پورا حق ہے. دیں اپنی بیٹیاں ہمیں. دیکھتے ہیں جب کوئی بیٹی مسیحیت میں آتی ہے تو مار دیا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے بے رحمی کے ساتھ. کیا ہم اہل کتاب نہیں ہیں؟ اہل کتاب ہیں تو پھر لین دین ہونا چاہیے نا, برابر کا لین دین چلنا چاہیے. ہم اپنی بیٹیاں دیں اور ان کی بیٹیاں لیں بھی, ہم اچھی سیٹوں پر بھی بیٹھیں, پھر تب ہم برابر کے حقدار ہیں. اور بیٹیاں ہماری جائیں تو ہم اہل کتاب ہے. بس افسوس کہ ہم کیسے ملک میں رہ رہے ہیں. کیا ہم اس ملک کا برا سوچتے ہیں؟
हम हर रोज पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान में हम रहते हैं और हम पाकिस्तानी हैं। अगर अहले किताब हैं और अहले किताब के साथ साथ हम पाकिस्तानी हैं। हम इस पाकिस्तान में बड़े हैं, पैदा हुए हैं और हम पाकिस्तानी हैं। दुनिया में हम चाहें तो हमारी नेशनलिटी क्या है जी? हम पाकिस्तानी हैं। हमारा आईडी कार्ड, हमारा पासपोर्ट, वीज़ा, हम पर पाकिस्तानी मोहर लगती है। तो जब ऐसी बातें आती हैं तब हम बेटियों तक, सिर्फ हमारी बेटियां अहले किताब हैं, हमारे बेटे जो है वो अहले किताब नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे बेटे भी अहले किताब हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिस मजहब में जी रहे हैं वो सच्चा खुदा है। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो जिंदा खुदा है। हम किसी मुर्दा खुदा की इबादत नहीं करते। हमारा खुदा अब्दुल आबाद जिंदा है। वो कहता है मैं मर गया था, फिर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। है किसी नबी की ऐसी कुदरत? है ऐसी कुदरत किसी की? आप हिस्ट्री देख लें, बड़े बड़े लोगों ने दावा किया खुदा बनने का। वो लोग आज भी मिट्टी का ढेर हैं, मनोमन मिट्टी के नीचे हैं। लेकिन हमारा खुदा, सब कौमें जानती हैं, सब कबीले जानते हैं कि हमारा खुदा मरा, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक मरा। उसने कहा था कि मैं मरूंगा लेकिन तीसरे दिन अपने वादा के मुताबिक जी उठा। पिछले संडे हमने उसकी ईद भी मनाई, उसके जी उठने की ईद मनाई गई है। और हमारा ईमान है और ये सब जानते हैं कि कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो मरी हो और जिंदा हो, वो अब्दुल आबाद जिंदा हो। हमारे मसीह ने बहुत से मुर्दे जिंदा किए, लेकिन वो मुर्दे कुछ वक्त के लिए जिंदा तो हुए। आज भी मुजज़ात होते हैं, बहुत से मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं रहते। वो कुछ अरसे के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए फिर मट्टी में, क्योंकि इंसान मट्टी से बनाया गया, खाक में मिल गई। वाहिद मरा खुदावंद यीशु मसीह ऐसी हस्ती है जिसको जमीन की जरूरत ना थी कि उसको रख सके दुनिया के तमाम मुर्दे जमीनों के नीचे, लेकिन हमारा यीशु, हमारा नजात दहिंदा जिंदा हुआ और आसमान पर है। ना सिर्फ आसमान पर बल्कि जमीन पर, जमीन के नीचे, पूरी कायनात पर उसका कंट्रोल है। ऐसा खुदा आप किसी मजहब में दिखा दें, किसी ने ऐसी बात की हो कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, किसी ने ऐसी बात की हो। मेरे सिसो, आज भी लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम गुनाह साबित करें, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि हमारा खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक हो जाएं। वो हमें पाक बनाता है। इस पुलिस को मारे, चित्र सेट हो जाएगा। कौन रख दो इसके ऊपर, क्या हो गया? ये डिस्टर्ब कर रहा है। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिसाल निकाले तिमोथियस, पौलुस रसूल का तिमोथियस के नाम था, पहला तिमोथियस। यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलेगी। सारे इधर आ जाए, माइक पकड़ लें। आप माइक आगे है, माइक आप, चल ठीक है। पहला तिमोथियस दूसरा बाब, ये पहली आयत जो है मर्द हजरात के लिए है और दूसरी आगे देखते हैं मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी ये सारे हवाला जाते हैं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज का मैसेज जो था वो पास्टर शबीर साहब का था, लेकिन किसी वजह से पास्टर साहब आ ना सके। उन्होंने रात को बता दिया था कि मैं नहीं आ सकता, तो इसलिए मैं ऊपर से भी थोड़ा लेट उतरा हूँ। मैं थोड़ी सी इसकी तैयारी कर रहा था। बड़ी अच्छी बातें आज खुदावंद ने, ये खुदावंद की मर्जी थी कि मैंने बोलना लाश, ये खुदावंद की मर्जी से होता है, हम नहीं कर सकते। ये
जी पहला तिमोथियस दूसरा बाब उसकी 8 आयत। इस्माइल भाई आयत बाई आयत चलेंगे, 15 आयत तक, लास्ट आयत 15 है, ठीक है, 15 तक चलेंगे, कुरान के कलाम में से देखेंगे। जी हालेलुया। पहला तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। आमीन। आमीन। खुदा मर्दों के लिए क्या चाहता है? सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी नहीं है, और हमारे मर्द जो हैं वो ऐसा करते ही नहीं है। खुदा क्या कह रहा है? खुदा क्या बात कर रहा है कि मर्द हाथों को उठाएं, और हाथ कौन से हैं मर्दों के? कौन से हाथ हैं जी? पाक हाथ। खुदा ने आपको पाक हाथ दिए हैं। अब पाक हाथों को उठाकर जब दुआ करेंगे, खुदा की हजूरी में ठहरेंगे, खुदा की हजूरी में झुक जाएंगे, अपने आप को खुदा के आगे पेश कर देंगे, तो फिर क्या होगा? जब मर्द मजबूत होगा तो तभी वो अपने बच्चों को नसीहत कर सकता है। और मसीह मर्द बहुत दूर हैं। रात को भी मैं यही बात कर रहा था कि औरतें बहुत ज्यादा हैं और मर्द कम हैं। क्या वजूहात है ये? मर्द क्यों नहीं खुदा की तरफ आते? जब तक घरों के मर्द खुदा में मजबूत नहीं होंगे और अपने हाथों को उठाकर दुआ नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को नसीहत नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे घरों के जो मर्द हैं वो खुदा के कलाम को जानते ही नहीं। अक्सर कहनियां पहना नहीं बोलता है, लेकिन मर्द को बहुत जरूरत है। बहनों को तो है, बहनों को तो समझ लग रही है। बहुत सारी बहनें ही चर्चिस में नजर आती हैं। आज भी आप गिनकर देख लें, थोड़े हैं लेकिन फिर भी बहनें ज्यादा हैं, मर्द कम है। मर्दों को जरूरत है बहनों से ज्यादा, क्योंकि खुदा ने पहले किसको बनाया? मर्द को बनाया। बड़े फक्र ना करने हैं, तू मेरी पसली जो निकली है, तो तेरी पसली जो जड़ी निकली हो तो मजबूत हो गई है। वो तो दुआ भी कर रही है, वो रोजे भी रखती है, खुदा की परस्तिश भी करती है, तू सिर्फ पसली से पीछे गया है। एहसान है, ये एहसान करते हैं कि औरत हमारी पसली से निकली है, ये नीचे है। क्यों नीचे है? आपके बच्चों को पैदा कर रही हैं, आपकी नस्लें बढ़ा रही हैं, कैसे पीछे हैं? आप मर्द हजरात को जरूरत है कि आप मजबूत हो जाएं, खुदा के आगे झुकने वाले बन जाएं। सब मर्द नहीं हैं, झुकने वाले भी मर्द हैं, और जो मर्द झुकने वाले हैं, हाथ उठाकर खुदा के आगे दुआ करते हैं, उनकी घरों की तरबियत भी आप देख सकते हैं। कम है, बहुत कम है। जो मर्द मजबूत हैं उनके बच्चों को देख लें, उनके फैशन को देख लें, कम बच्चे होंगे जो ऐसे बुरे निकल आए, वरना अच्छे नजर आएंगे आपको। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हमारी कलीसिया के बच्चे भी अच्छे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लिबास में रहते हैं और खुदा को जानते हैं, क्योंकि हमारे जो मर्द हैं वो मजबूत हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप लोग मजबूत हैं, आप लोग दुआ करते हैं, मुझे पता है। थोड़ी करें ज्यादा करें, करते हैं। अगर नहीं करते जो लोग, वो आज खुदा के कलाम में से हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, एक बार फिर पढ़ दें ताकि अच्छे से हम समझ सकें। जी, बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे। आमीन आमीन। गुस्सा तो बहुत है हमारे मर्दों में, गुस्सा बहुत दिखाते हैं, लेकिन नसीहत नहीं देते अपने बच्चों को। हमने अपने बच्चों की तरफ गौर करना, अपने बच्चों की तरफ हमें तवज्जो करनी है। और मर्द के हाथों को खुदा ने क्या कहा है? पाक हाथ है ये, पाक हाथ, और पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जोरदार क्लैपिंग खुदावंद यीशु की जय हो। आगे बढ़ेंगे, 9वीं आयत। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि
बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। आमीन। हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को? अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है हमें। और ये तभी होगा जब हम बचपन में ही अपने बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिनके बच्चे छोटे हैं वो अभी से इन बातों को सीखें और अपने बच्चों को इसी तरह तरबियत दें, नसीहत दें, ताकि वो बूढ़े होकर भी, बड़े होकर नहीं, बूढ़े होकर भी खुदा के कलाम को जाने कि हमने कैसी परवरिश पाई है। क्या हम अपनी जो जिंदगी है, अपने कपड़े जो हैं खुदा के कलाम के मुताबिक पहन रहे हैं? खुदा का कलाम तो हमें सिखा रहा है कि औरत हयादार कपड़े पहने। हयादार कपड़े कौन से आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हयादार कपड़े यानी कि नॉर्मल कपड़े। और पतरस के खत में देखें तो वहाँ भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि औरतें श्रृंगार तो करें फैशन। किसके लिए? शोहर के लिए। शोहर के लिए आप सजें, सवरें, शोहरों के लिए सवरें। ऐसे नहीं है नहीं कहीं ना वो सुर्खियां ला के मेकअप करके पूरे चलोतियां रहती। खुदा का कलाम हमें ऐसा नहीं सिखाता। आप श्रृंगार करें लेकिन अपने घर तक। फैशन करें इस हद तक, कपड़े पहने, ऐसी ड्रेसिंग करें जो हयादार हो। खुदा चाहता है कि औरतें हयादार कपड़े पहने। हम जब अच्छे कपड़े, हयादार कपड़े, अच्छी ड्रेसिंग, हयादार ड्रेसिंग करेंगे तो हम खुदा के कलाम को पूरा करेंगे, खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। क्या हमें खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो हमने सीखा है कि हम मकरू काम करते हैं। हम मकरू काम करने के लिए पैदा नहीं हुए इस जमीन पर। खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम मकरू काम करें। खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम अच्छे कपड़े, हमारे चलने फिरने से, हमारे कपड़ों से, हमारी बातचीत करने से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। खुदा का जलाल जाहिर हो। ये ना लोग कहेंगे कि मुझे कपड़े पाई फिरती, वे कौन है? देखो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आते हुए लोग, आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब हमारे कपड़े अच्छे होंगे तो लोग बात नहीं करेंगे, तब खुदा का कलाम पूरा होगा। हमारे कपड़ों से भी जाहिर होगा, हमारे बोलने से जाहिर होगा, हमारे चलने से जाहिर होगा कि हम चलते कैसे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है। हमने अपने चाल चलन को भी दुरुस्त रखना है। जब हम बड़े ऐसा काम करेंगे तो हमारे बच्चे हमसे सीखें। जब हमारे बड़ी बेटियां, बड़ी बहनें उल्टी ड्रेसिंग करेंगे तो बच्चों को कैसे मना करेंगी? हम नहीं कर सकते। कोई शराब पीने वाला अपने बच्चे को कह सकता है शराब ना पिया कर, क्योंकि वो खुद पीता है। अगर वो खुद पीता है तो कैसे मना करेगा? अगर वो नहीं पीता तो वो मना कर सकता है, उसका हक है। जब वो खुद उल्टे काम कर रहा है तो अपने बच्चों को मना नहीं कर सकता। अगर हम अपने बच्चों के सामने ऐसे सिगरेट लगाएंगे, कश लगाएंगे लंबे लंबे, तो हम अपने बच्चों को मना कर सकते हैं? हम सिगरेट हाथ में पकड़कर कह सकते हैं ओए सिगरेट ना पिया करो भाई, तो सिगरेट पीना ना अब्बा तू तो बात आया, मैनू किस तरह मना कर सकते? हम मना नहीं कर सकते। कोई भी उल्टा काम अगर हम करते हैं तो हमारे बच्चे करेंगे, हम उनको मना नहीं कर सकते। बात यह है कि हम बड़ों को दुरुस्त होने की जरूरत है। जब हम बड़े दुरुस्त हो जाएंगे तो खुद ब खुद हमारी नस्लें दुरुस्त होंगी। हम देखते हैं लड़कियां मोटरसाइकिलें चला रही हैं, लड़कों वाले कपड़े पहने हुए, अजीब हुलिया बनाया हुआ है। क्या ये खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है? और देखा देखी ये बात हमारे मसीहों में भी कन्वर्ट हो रही है। हमारी मसीह बेटियां भी ऐसे ही काम करना शुरू हो गई हैं। पैंटे पहनी, हेलमेट पहना, मेकअप किया, रोड पर निकल गए। क्या खुदा ऐसा चाहता है? खुदा ऐसे नहीं चाहता।
खुदा चाहता है कि हमारे कपड़े भी दुरुस्त हो, हमारी बातचीत भी दुरुस्त हो, हमारा चलना फिरना भी दुरुस्त हो। खुदा हमें मकरू नहीं रहने देना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जी। 10वीं आयत, बल्कि नेक कामों से जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। आमीन। जी। नेक काम, हमारी औरतों को नेक काम करने की जरूरत है। और नेक काम से मुराद क्या है कि अच्छा काम, अच्छी बातें, नो चुगलखोरी, नो ऐसी बातें, बुरी बातें मुंह से ना निकले, नेकी की बातें हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। हम जब भी कोई बात करें, ऐसी बात करें कि अच्छी लगे, सुनने वाले को भी अच्छी लगे। अगर वो बात दूसरे लोगों तक पहुंचती है तो वो ये कहे कि उसने अच्छी बात की है, ये ना कहे कि उन्हें चुगली लाई, वो ऐसे कह रही सी, ऐसे कह रही सी। ऐसी बातें ना करें, अच्छी बात करने की कोशिश करें, अपने मुंह से अच्छा लफ्ज निकालने की कोशिश करें, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा हो, खुदा का जलाल हमारे बोलने से जाहिर हो, हमारे बोलने से हमारा पता चले कि ये नेक औरत है, ये नेक बेटी है, ये अच्छी बेटी है। हमारा पॉइंट बोलने से बात शुरू हो, और अच्छी बात किया करें, अच्छी बात किया करें, ताकि खुदा को पसंद आए और खुदा का जलाल हमारे बोलने से जाहिर हो। हालेलुया। जी आगे बढ़ें। यह भी है, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। आमीन। हमें कैसे सीखना चाहिए? कमाल ताबेदारी के साथ, खामोशी के साथ। ऐ नहीं कि अपनी गल्लां करते, जैसे खुदा का कलाम ਅਸੀਂ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन दूजियां दियां भी गल्लां। बहुत से चर्चों में ऐसे ही होता है कि नाल बैठियां ना घर की स्टोरी छेड़ के बैठी होंदियां, खुदा के कलाम नहीं सुनती। लेकिन लिखा हुआ है कि औरतें चुपचाप खामोशी के साथ सीखें, सीखने वाली बने। लेकिन आज हमारी औरतें कोशिश करती हैं कि सिखाने वाली बने, क्योंकि खुदा ने पहले मर्द को बनाया, मर्द से हमने सीखना है, और मर्दों को जरूरत है कि वो भी सिखाने वाले हों। अगर वो सिखाने वाले होंगे तो हम सीखेंगे, औरतें सीखेंगी। अगर हमारे मर्द ही नहीं सिखाने वाले तो औरतें तो बोलेंगी, घरों में भी बोलेंगी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि औरतें खामोशी के साथ सीखें। हमें आज जरूरत है कि हम सीखें, और जब सीखेंगे तो खुदा को अच्छा लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। जी, बाद में आगे पढ़ेंगे। और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। आमीन। हमें आज की हो रहा है, बहुत सी जगहों पे, बहुत से घरों में औरतों की हुक्मरानी है, औरतें ही लीडर बनी हुई हैं घर की। खुदा ने मर्द को लीडर बनाया है, और मर्द को जानना चाहिए इस बात को कि मर्द लीडर है, वो सिखाने वाला है। वो सिर्फ औरतों को सिखाने वाला नहीं है, अपने बच्चों को भी सिखाने वाला है। मर्द भी ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा मर्द होगा तो फिर औरत ही सिखाएगी, मजबूरी होगी उसकी, फिर सीखना पड़ेगा औरत से। जब हम औरत से सीखेंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा होगा, मकरू होगा। औरतें औरतों वाले काम करेंगी और मर्द मर्दों वाले काम करेंगे, तो खुदा का कलाम पूरा होगा। वरना ये बातें मकरू बातें हैं हमारे लिए। हालेलुया। मकरू बातें नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक अच्छी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। जी आगे बढ़ेंगे। 13 क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा। आमीन। हाँ जी, सारे जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पहले आदम बनाया गया, फिर हवा। और ये भी खुदावंद की शुक्रगुजारी है, ज्यादा घरों में औरतों की हुक्मरानी है। हालांकि पहले आदम बनाया गया है, फिर भी आदम पीछे है। और जब तक आदम अकेला था, हम सब जानते हैं कि आदम जब तक अकेला था
तो वो खुदा के कलाम के साथ साथ चलता था। कोई भी ऐसी मकरू बात पैदा नहीं हुई थी जब तक आदम अकेला था। और जैसे ही औरत आई तो फिर इब्लीस का काम शुरू हो गया। इसका मतलब है, सीखने वाली बात है कि औरत बहुत जल्द इब्लीस के हाथों में आ जाती है। बहुत जल्द इब्लीस औरत पर कब्जा करता है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि जब औरत आई तो तभी शैतान भी आ गया साथ ही। और उसको पता था, वो कोशिश करता होगा आदम को भी बहलाने की। आदम पर भी उसने कोशिश की होगी कि तुम इस दरख्त का फल खाओ, लेकिन नहीं खाया होगा उसने। मैं अपना ख्याल जाहिर कर रहा हूँ कि कोशिश की होगी, इसमें लिखा हुआ नहीं है। उसने कोशिश तो जरूर की होगी। आज भी वो कोशिश करता है। अगर वो आज भी मर्दों पर कोशिश करता है तो उसने पहले आदम पर भी कोशिश जरूर की होगी। कोशिश करता रहता है। और जब तक घरों के मर्द दुरुस्त नहीं होंगे, दुआ नहीं करेंगे, अगर मुठ जो है वो ही मजबूत नहीं है तो शाहें कैसे मजबूत हो सकती हैं? मर्द जो है वो मुठ है घर का। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और जब तक हम यीशु मसीह में मजबूत होते हैं, हमारी शाहें हरी भरी रहती हैं, हम हरे भरे रहते हैं। लिखा है कि जो डाली टूट जाती है, तोड़ी जाती है, तो वो सूख जाती है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मजबूत नहीं हैं, मर्द हजरात खास तौर पर, तो हम सूखे दरख्त की मानिंद हैं। जब हम सूखे दरख्त की मानिंद हैं तो हमारे बच्चे हरे भरे नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं कि मर्दों तक ये मैसेज पहुंचे, मर्द हजरात इसको सीखें और खुदा में मजबूत हों। हालेलुया। जी आगे बढ़ेंगे। और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। हमें जी, आदम ने फरेब नहीं खाया, आदम पर कोशिश जरूर की गई है। जरूर शैतान उसको पकड़ता होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि आदम ने फरेब नहीं खाया, लेकिन हवा फरेब खा गई, गुनाह में पड़ गई। और आज हमें जरूरत है औरतों को भी, मर्दों को भी, कि वो मजबूत हो जाएं। जब दोनों मियाँ बीवी मुत्तफिक होंगे तो हमारे बच्चे यकीनन दुरुस्त होंगे। अगर मियाँ बीवी आपस में मुत्तफिक नहीं है, अगर बाप डांटता है और माँ छड़ दे तू हर वेले यही करता है, तो हमारे बच्चे मजबूत नहीं हो सकते, क्योंकि उनको माँ की सपोर्ट हो गई है। माँ सपोर्ट कर रही है, उनकी मना कर रही है, और बच्चे माँ की तरफ हो जाएंगे। अगर माँ तरबियत कर रही है तो बाप को चाहिए कि वो दुरुस्त अगर तरबियत कर रही है तो उसको खामोश रहना चाहिए, कि वो अच्छी बात कर रही है, अच्छी बातें सिखा रही है। दोनों को मुत्तफिक होने की जरूरत है। मियाँ बीवी मजबूत हो जाए, मुत्तफिक हो जाए, तो आपके घर में शैतान काम नहीं कर सकता। आपकी सोचों को, आपके ख्यालात को शैतान नहीं बदल सकता। अगर आप में मुखालिफ बातें हैं एक दूसरे की, तो शैतान जरूरी है कि बड़े आराम के साथ, बेशक गुनाह औरत के सबब से आया, औरत गुनाह में पड़ गई, लेकिन आज इब्लीस मर्दों को भी पकड़ लेता है, क्योंकि मर्द वो मर्द नहीं है, वो आदम नहीं है जिसको वो पकड़ नहीं सका, लेकिन औरत के सबब से वो काबू में आ गया। तो आज ऐसे मर्द नहीं है कि इब्लीस ना पकड़ सके। इब्लीस मैं कहता हूं कि पुरपट पर पादरियों को इस्तेमाल कर जाता है। जो पादरी सिर्फ अपनी कलीसिया को खुश करते हैं, वो समझ लें कि वो इब्लीस के हाथों में है। जो मना नहीं करते उल्टे कामों से कि मेरे लोग ना कर जाएं, वो समझ लेंगे इब्लीस के काबू में है। जो सच्चाई की बात करता है, सच्चाई का कलाम बताता है और हर बुरी बात से रोकने की कोशिश करता है, तो आप सोचें कि हमारा खादम
ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں ہے. اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ چندہ کٹ جائے گا. اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ دہائیں کی کٹ جائے گی. اس کو خوف یہ ہے کہ میرے لوگ جتنے بھی ہیں مضبوط ہو جائیں اور اچھے سے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکے. اچھا خادم یہی چاہتا ہے. اور جو صرف لوگوں کو خوش کرتا ہے تو بڑی آسان بات آپ کو میں نے سکھا دی ہے کہ آپ کو سمجھ لگ جانی چاہیے کہ ابلیس کے ہاتھوں میں ہے. کیونکہ پیسہ ابلیس کو شو کرتا ہے. پیسہ ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن پیسے کی لالچ کرنا بری بات ہے. جو آپ کے نصیب کا ہے وہ شیطان بھی نہیں چھین سکتا. وہ آپ کو ملے گا, آپ اچھی زندگی بسر کریں گے. ہاللیلویا. جی آگے بڑھیں گے. لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرط کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے. آمین. آمین. اولاد ہونے سے نجات پائے گی کا مطلب کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے گی, نجات پائے گی. کس کام سے نجات پائے گی؟ جو گناہ ہوا تھا اس سے نجات پانے کے لیے آج ہمیں مسیح کے کلام کو پورا کرنا ہے, مسیح کو جاننا ہے, اپنے بچوں کو نجات کی طرف لے کر آنا ہے. اور یہ بات ہم نے بچپن میں ہی ان کے دلوں میں ڈالنی ہے. آج ہمارے بچے, چھوٹے بچے کہتے ہیں ہمیں بپتسمہ دو, لیکن نہیں, ہم نہیں دیتے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے بچے اس بات کو جانتے ہیں, وہ نجات کو جانتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرا بیٹا ابھی ایک پوتا جو ہے 1.5 سال کا ہے, ابھی اس کو کھڑا کریں, وہ آپ کو بتائے گا بپتسمہ کیسے ہے. وہ دیکھ رہا ہے ہمیں, اس سے پوچھیں, وہ ناک پکڑتا ہے, اسے پیچھے چلا جاتا ہے کہ یہ بپتسمہ ہے. ابھی سے وہ سیکھ رہا ہے. اور ابھی سے ہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں, نصیحت دیں, تاکہ ہمارے بچے مضبوط بن جائیں. ہاللیلویا. جی آگے پڑھیں گے. 15ویں آیت, آخری آیت, اور کلوز کریں گے. وقت کافی ہو چکا ہے. لاسٹ آیت 15. جی. لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرط کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے. 15ویں آیت تھی لاسٹ آیت. اچھا وہی رکوانا آگے تھے. جی ہم نے ابھی اس حوالے کو سیکھا ہے, یہی دوبارہ دہرایا گیا ہے. 15ویں آیت میں بھی یہی بات ہمیں دہرائی گئی ہے کہ ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو مضبوط کریں گے. رات بھی میں نے یہی بات سکھائی تھی لوگوں کو کہ جب ماں باپ, ان کی شادی ہو جاتی ہے, ماں باپ بن گئے ہیں, اس سے پہلے وہ خدا کے کلام کو پورا کریں. جب ہم خدا کے کلام کو پورا کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر دیتے ہیں. کتنی دیر تک؟ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا. جب ماں باپ بپتسمہ یافتہ ہوں گے تو ہمارے بچے سیکیور ہو جائیں گے. اگر ہمارے بچے اکثر اوقات چھوٹے ہی مر جاتے ہیں, پیدا ہوتے بھی مر جاتے ہیں, اگر ماں باپ سیکیور ہیں تو ہمارے بچے کیا ہوں گے؟ نجات پا چکے ہوں گے ماں باپ کے وسیلہ سے. اگر ماں نے نجات پائی ہے, پیو نے نہیں پائی, اگر پیو نے پائی ہے تو ماں نے نہیں پائی, تو یہ بھی ہمارے بچوں کے لیے اچھا نہیں. اس کا مطلب ہے اگر باپ نجات یافتہ ہے تو باپ تو ٹھیک ہے, اگر ماں اکیلی ہے تو ماں ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک نہیں ہیں, دونوں متفق نہیں ہیں. دونوں متفق ہوں گے تو ہمارے بچے کیا ہوں گے؟ آنے والے بھی نجات یافتہ ہوں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نجات یافتہ ہوں, اچھے ہوں, پڑھے لکھیں, پڑھیں. اس کے لیے ماں باپ کا درست ہونا بہت ضروری ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جی لاسٹ آیت ایک اور ہے, وہ پڑھیں گے. 4 آیت, ایک ہی آیت ہے, اس کے بعد ہم کلوز کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ اچھے سے ہم سیکھ سکیں ان باتوں کو. جی افسیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 4 باب, اس کی 24 آیت میں لکھا ہے, اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. آمین. ہم نے کیا کرنا ہے؟ نئی انسانیت کو پہننا ہے.
हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो नए इंसान, नई मखलूक बन जाते हैं। हम नई इंसानियत में आ जाते हैं, नई इंसानियत को पहन लेते हैं। तो जब हम नई मखलूक बन जाते हैं, नए हो जाते हैं खुदा से, तो फिर हमें वापस मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वापस मुड़ के किसने देखा था? लूत की बीवी ने मुड़कर देखा था। खुदा के फरिश्ता ने मना किया था कि सीधे चलो, वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो उसने खुदा के हुक्म की अदुली की, तो वो पीछे मुड़कर जब उसने देखा, तो आज भी हमारे लिए निशान है, इबरत का निशान है, हमारे सीखने वाला निशान है कि वो नमक का सतून बन गया। आज भी बहुत से लोग निजात याफ्ता तो हो जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन वापस अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। रात भी बहन के भाइयों ने मुझे कहा कि आप जब भी कहेंगे हम आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको सीखने की जरूरत है। मैं वक्त निकालूंगा आपके लिए, आपको सिखाऊंगा। तब आप जब सीखेंगे, खुदा की तरफ आएंगे, तो फिर आप मजबूत होंगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो मेरे असीसों, हासिल कलाम यही है कि हम जो निजात पा चुके हैं, हम जो बपतिस्मा ले चुके हैं, तो हमने आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमारी जिंदगी चलती फिरती तो नजर आएगी, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम नमक के सतून हैं, मुर्दा हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को तरबियत दें, ताकि आपके बच्चे मजबूत हो सके। आप मजबूत होंगे तो आपके बच्चे यकीनन मजबूत होंगे। और आज जो दौर चल रहा है, हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि हम अहले किताब हैं, हम अपनी बेटियां इनको दें, और तब तक हम अहले किताब हैं जब तक हम अपनी बेटियां देते रहें। जब इनकी बेटियों की बारी आए तो हम अहले किताब नहीं हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को अपने कलाम के मुताबिक तरबियत और नसीहत देनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आज के कलाम के जोरदार तालियां की खुदा के कलाम के लिए, खुदा की बातों के लिए, खुदा के पादन